Hello everyone. So a very good morning. Today we are going to discuss regarding the man-made disaster and the part of disaster management. So man-made disaster. What do you mean by the man-made disaster? Man-made means that is only the person is and people they are himself they are making the disaster. They are developing a disaster as in form of man-made disaster. खुद पर्सन डेवलप करता है मैन मेड डिजास्टर जो होते हैं खुद एक जो व्यक्ति होता है या उसके अंदर जो लोग होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं टू बिकम ए डिजास्टर सो देर आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द डिजास्टर जैसे आपने देखा होगा कि बम बनाना मनुष्यों के द्वारा बम बनते हैं बम ब्लास्ट होता है या फायर होता है या किसी पे केमिकल वॉर होता है तो इस प्रकार के जो वॉर होते हैं जो खुद इंसान के द्वारा बनाए हुए होते हैं उन हम उन जो आपदाएं हैं उन आपदाओं को हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं तो यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर को क्लासिफाई किया गया है कि मैन मेड डिजास्टर क्या होता है तो मैन मेड डिजास्टर के अंदर देर आर सम ऑफ द फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स आर न्यूक्लियर वॉरफेयर न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर ब्लास्ट होता है हीट होता है रेडिएशन होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर वॉरफेयर then second is the biological warfare then third one is the chemical warfare and fourth one is the conventional warfare in the third chemical warfare that is the nerve gases and mustard gas so these all comes in the chemical warfare सो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आप देख सकते हो कि बायोलॉजिकल के अंदर वायरस अटैक होता है बैक्टीरियल अटैक होता है तो दिस इज टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल warfare conventional warfare so these all four categories comes in the man-made disaster so we'll see the nuclear warfare न्यूक्लियर वारफेयर क्या होता है न्यूक्लियर वारफेयर का मतलब होता है इट इज ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर ब्लास्टिंग न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्टिंग between the it is a type of weapons which is using by the army force and they are using to damage the enemy जैसे कि एक प्रकार से उन न्यूक्लियर वारफेयर से एक प्रकार से हीट जनरेट होती है रेडिएशन जनरेट होती है जिससे कि आर्मी पे अफेक्ट पड़ता है लोगों को के ऊपर अफेक्ट पड़ता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वारफेयर सो इट इज ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है और a political strategy in which nuclear weapons are used to inflict damage on the enemy which causes blast of the heat and radiation. This is known as nuclear warfare. It is a type of military conflict, but is a type of political strategy where the nuclear weapons are using to inflict damaging the enemy which cause the blast of the heat and radiation is known as nuclear warfare. So it is a type of nuclear warfare is a blast. So blast means it is a nuclear explosion that occurs as a result of rapid release of energy from a high speed nuclear reactions. The resulting consequences will be nuclear fission or nuclear fusion or a multi-stage cascading combination of two. Then a fusion device is used to initiate fusion which create blast waves causing damage to people and building and affected people suffer from the burns, fractures, sprains, cuts and injuries. So these all categories where the peoples are mainly affecting from the such type of physical injury. So what do you mean by the blast? Blast आपको पता है कि blast क्या होता है? Bomb blast. It is a bomb blast is a nuclear explosion होता है क्यों होता है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज होता है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करने के बाद उसको ब्लास्ट करते हैं इस प्रकार एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिससे एक प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड हाई स्पीड की वजह से एक प्रकार से एनर्जी एक बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है जैसे कि धीरे धीरे अब एक हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन होने से एक प्रकार से धीरे धीरे एनर्जी का रिलीज होना
ठीक है, एक प्रकार से हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नॉन एज ब्लास्ट. So here the resulting consequences will be nuclear fission and or nuclear fusion or a multi-stage cascading combination of two. दो प्रकार की कंडीशन होती है इसके अंदर, एक न्यूक्लियर फिशन होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ठीक है, न्यूक्लियर फिशन होता है कि धीरे धीरे बम ब्लास्ट के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हमारे हवा के वातावरण के कांटेक्ट में आते हैं, धीरे धीरे वो उनका आवागमन होता है. और न्यूक्लियर फ्यूजन और या उस प्रकार से बहुत सारी चीजों या दोनों चीजों से मिलकर के एक प्रकार से एक ब्लास्टिंग होना, एक ब्लास्ट हो गया है दोनों चीजों से मिलकर के, ये एक प्रकार से जिससे कि एक प्रकार से कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होता है. मतलब एक प्रकार से ये एक हार्मफुल बेस होती है, हार्मफुल कंडीशन होती है जिसके कारण हार्मफुल रिएक्शन दैट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, जो एक प्रकार से ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, या इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, या इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कास्केडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. ए फ्यूजन डिवाइस फ्यूज करने के लिए, फ्यूजन के लिए और फिशन के लिए एक प्रकार से फ्यूजन डिवाइस का उपयोग होता है जिसके अंदर फ्यूजन इनिशिएट होता है, जो क्या करता है कि ब्लास्ट वेव्स को क्रिएट करता है जिससे लोग और जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स हैं, वो डैमेज होती है, जिसका कारण है डैमेज ऑफ द पीपल एंड बिल्डिंग्स बिकॉज इट क्रिएटिंग द ब्लास्ट वेव्स which is made by the fusion device which initiate the fusion. So affected people suffer from the burn. जो affected लोग होते हैं वो burn से पीड़ित हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, कट्स हो जाते हैं, इंजुरीज हो जाती है. This is known as the blast. So next move on the heat. What do you mean by the heat? हीट आप जानते हो, हीट बहुत ज्यादा होती है, रेडिएशन ऑफ द इंटेंस हीट, बहुत तेजी से हीट का इंटेंस होना, रेडिएटेड होता है, रेडिएशन डेवलप होता है जो लोगों की स्किन को अफेक्ट करता है, जिसका कारण है कैंसर होना. रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, या अदर टाइप ऑफ हीट रिएक्शंस होती है जिससे इंसान की जो स्किन होती है उस पर प्रभाव पड़ता है. स्किन पर प्रभाव पड़ने के कारण ये एक कैंसर का रोग धारण कर लेती है, जिस द हीट. रेडिएशन क्या है? इट इज एक्सप्लोजन ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब. जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उनका एक्सप्लोजन होता है जिससे एक्सेसिव रेडिएशन डिस्चार्ज होता है सडनली, just like is similar to the x-ray की तरह होता है, which causes the victim to the suffer from the nuclear burns. जो लोगों को एक प्रकार से विक्टिम बनाता है जो न्यूक्लियर बर्न्स का कारण होता है, जिससे कि लोग न्यूक्लियर बर्न्स के कारण सफर होते हैं. ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इज slowly again radiating and exploding just like a x-ray, and which causes the victim of the sufferer and which may cause is the nuclear burns. So nuclear warfare, this is the three types of the nuclear warfare: blast, heat and radiation. Now move on the biological warfare. Biological warfare means it is a method of the enemy attack is to introduce diseases that affect humans, domestic animals or food crops. सो बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है? बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब होता है एक प्रकार से ये मेथड होता है, जरिया होता है जो एनिमी के ऊपर अटैक होता है. उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ डिजीज जो होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे इंसान जो होता है, वो ह्यूमन जो होता है वो अफेक्ट होता है, डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है. तीन चीजों पर प्रभाव पड़ता है. एक तो ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स बीइंग्स होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं या हमारी फसल है या जो भी है क्रॉपिंग्स जो मटेरियल है उन क्रॉप्स के अंदर उसका इफेक्ट होता है. जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी भी ये जो चल रहा है कोविड-19 जो है आपका, और कोरोना वायरस चल रहा है, ये एक प्रकार से अटैक है जो अदर कंट्री के द्वारा एक प्रकार से अटैक किया गया है. जस्ट लाइक एनिमी अटैक, जो हमारे अंदर एक बीमारी को पैदा कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो जिससे हमारी एक मानव जाति और हमारे एक एनिमल जाति और फूड क्रॉप जो है उन पे उसका इफेक्ट होता है. दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल वारफेयर.
then either germs or toxins, poisons produced by the germ may be spread by the bombs or aerial spray. अब इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है जो स्प्रेड हो रहा है। जो क्राइटेरिया है जैसे जम्स के रूप में ये बॉम्ब के द्वारा स्प्रेड हो रहा है, एरियल स्प्रे के द्वारा स्प्रेड हो रहा है, सिवोटोरियस के द्वारा ऐड हो रहा है, जिसमें कि डेंजरस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं डायरेक्टली टू द फूड और वाटर सप्लाई के अंदर। जहाँ पानी या खाना आ रहा है, जहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, उसके अंदर उन जो सिवेटेरियस जो होते हैं, उनको डेंजरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डायरेक्टली फूड के अंदर और वाटर के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि जब हम भी उनको जब भी पानी पिएंगे, जब भी हम खाना खाएंगे या जो भी हम लेंगे, तो उससे उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर। एक प्रकार से टॉक्सिन्स और एक पॉइजनस इफेक्ट होगा, जिससे कि हम बीमार हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये एक स्प्रे के रूप में यूज होता है, एक बॉम्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है, जो जर्म के रूप में भी स्प्रेड होता है। तो इस प्रकार की ये जो कंडीशंस है, हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। थर्ड है आपका केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? इन द केस ऑफ मैसिव अटैक ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन बाय द केमिकल एजेंट सच एज नर्व गैस एंड मस्टर्ड गैस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गैस होती है जो केमिकल वॉरफेयर के अंदर यूज में लाई जाती है, जो है देयर आर टू टाइप्स, नर्व गैस और मस्टर्ड गैस। ठीक है, एक प्रकार से मैसिव अटैक होता है जो किसके ऊपर होता है? सिविलियन पॉपुलेशंस के ऊपर एक प्रकार से मैसिव अटैक होता है। किसके द्वारा होता है? केमिकल एजेंट के द्वारा। जो केमिकल एजेंट है वो है आपके नर्व गैस और मस्टर्ड गैस। सो नाउ मूव ऑन द नर्व गैस। नर्व गैस क्या होती है? These are the group of highly poisonous chemicals होते हैं, that are the colorless and odorless होते हैं। एक प्रकार से हम जो नर्व गैस होती है वो कैसी होती है? हाईली पॉइजनस केमिकल्स होती हैं, जो कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। दे आर लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्प्रे फ्रॉम प्लेन्स। जो प्लेन्स होती हैं, एरोप्लेन होती हैं, उनके उनसे एक लिक्विड स्प्रे के रूप में इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बॉम्ब के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। किसी भी सेल के द्वारा या कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होता है, एक खोखला कोई वस्तु होती है, उस खोखली वस्तु के अंदर इनको भर करके और इनको छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की जो मेथड है, टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को यूज में लेते हुए इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि स्प्रे के रूप में इनको प्लेन से भेजा जाता है, बॉम्ब के द्वारा, सेल्स के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। द लिक्विड कैन क्विकली पेनिट्रेट क्लॉथिंग। जो लिक्विड होता है वो हमारी क्लॉथिंग को पेनिट्रेट करता है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही जैसे लिक्विड हमारे बॉडी के टच में आएगा और सर हमारी कपड़ों में वो पेनिट्रेट करेगा और हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इज एसेंशियल इन डीलिंग विद द नर्व गैस। जो स्पीड होती है वो एसेंशियल होती है, डील करती है नर्व गैस के साथ। इंसिडेंस इवन इन द लो कंसंट्रेशन दे कैन बी प्रोड्यूस सीरियस इलनेस और डेथ विद इन ए फ्यू मिनट्स। धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन स्किन के द्वारा हमारी ब्लड के अंदर कांटेक्ट में आ जाता है, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर एक सीरियस इलनेस का रूप ले लेता है, जिसका कारण डेथ होता है। कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है, कुछ मिनट के बाद डेथ हो जाती है। तो एक प्रकार से नर्व गैस जो है एक प्रकार से हाईली पॉइजनस केमिकल होता है, जहां पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ये किस तीन प्रकार से फॉर्म में ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो एक स्प्रे के रूप में प्लेन से कराया जाता है, बॉम्ब से कराया जाता है, सेल्स से कराया जाता है। ये धीरे धीरे हमारी जो कपड़े होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करता है और धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जो धीरे धीरे इसका जो लो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी को एक प्रकार से सीरियस इलनेस के रूप में डेवलप कर लेता है, और सीरियस इलनेस के साथ साथ पर्सन की एक डेथ होने की चांस ज्यादा रहता है। तो दिस नॉन एज द नर्व गैस। नाउ विल सी द मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, आप मस्टर्ड एक ऑयल जानते हो, मस्टर्ड गैस तरह की होती है। जब भी आप कच्चा तेल लोगे, आप जैसे ही आप कढ़ाई पे डालोगे, जैसे ही आंखों के अंदर एक मिर्ची सी लगती है, इस तरह का मस्टर्ड गैस होता है। तो मस्टर्ड गैस इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑयली लिक्विड रेंजिंग इन द कलर फ्रॉम द येलो टू ब्राउन। जैसे ऑयली लिक्विड होता है, इसका कलर जो होता है येलो टू ब्राउन हो जाता है। ठीक है, येलो कलर होता है नॉर्मली। धीरे धीरे हम इसको क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं तो बर्न के दौरान इसका जो कलर है वो ब्राउन ले लेता है।
ठीक है, जिसके अंदर स्मेल जो होती है जस्ट लाइक गार्लिक की तरह होती है, शू पॉलिश की तरह होती है, रोटिस रोटेन फिश की तरह होती है। मतलब इनका ये जो है प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह की गार्लिक है, शू पॉलिश है, रोटेन फिश है, इसका ये एक प्रकार से और फिर येलो टू ब्राउन में डेवलप हो जाती है। तो ये एक प्रकार से ऑयली लिक्विड है, एक प्रकार का ग्रुप है जो फॉर्म में हो जाता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्प्रे फ्रॉम एयरक्राफ्ट, बॉम्ब एंड सेल। सेम वो कंडीशन है जो मेथड के द्वारा यूज किया जाता है इसको लिक्विड स्प्रे में, एयरक्राफ्ट के द्वारा बॉम्ब्स एंड सेल्स के रूप में। ड्रॉप ऑन द स्किन क्विकली प्रोड्यूस ब्लिस्टर, दे आर वेरी स्लो टू हील। धीरे धीरे ये क्या करता है कि जब हमारी स्किन के ऊपर गिरता है तो ये ब्लिस्टर का रूप धारण कर लेता है और ये बहुत धीमे से हील होता है। द लिक्विड स्लोली एवेपोरेट, जो लिक्विड होता है स्लोली एवेपोरेट होता है, जो एक प्रकार से गैस प्रोड्यूस करता है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। जिससे क्या हो जाता है, हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है, सॉरनेस हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है। ये वेपर इज इनहेल्ड, यदि हम मुंह से नाक से उसको इनहेल्ड कर लेते हैं, जो हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है, जिससे हमें खांसी उठती है। ठीक है, ब्रीदिंग लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, फीवर आ जाता है। तो एक मस्टर्ड गैस है जो आप नॉर्मली आप देख सकते हो घरों के अंदर हम कच्चा तेल यूज करते हैं, जब भी हम कढ़ाई पे डालते हैं छौंक लगाने के लिए, तो एक प्रकार से एक वेपर फॉर्म में डेवलप हो जाता है, जो येलो टू ब्राउन में डेवलप हो जाता है, जिससे कि स्मेलिंग इस तरह की स्मेल आती है जो हमारे आंखों को एक इरिटेशन डेवलप करती है। हमारे धीरे धीरे आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है, अल्सरेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह फिर हम जब उसको इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे हमें खांसी उठने लगती है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जिससे फीवर आता है। तो इस तरह की ये जो आपके फीचर्स हैं वो मस्टर्ड गैस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन द कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या होता है? कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब होता है कन्वेंशनल आर्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इंक्लूड एक्सप्लोसिव एंड फायर बॉम्ब। कन्वेंशनल आर्म जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती हैं, जिनके अंदर एक्सप्लोसिव्स होते हैं और फायर बॉम्ब्स होते हैं। तो ये आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर कहलाते हैं। कन्वेंशनल आर्म्स जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए यूज में हो लाए जाते हैं, जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं और फायर बॉम्ब्स होते हैं, जो देर आर देर आर फॉलोइंग इफेक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग। बहुत एक प्रकार से बहुत इफेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, हमारे हमारे एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके इफेक्ट जो हैं, वुंड है फ्रैक्चर कॉज्ड बाय द फ्लाइंग स्प्लिंटर ऑन द एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोसिव की जो छोटे छोटे जो छींटे होते हैं, छर्रे होते हैं, वो जो हवा में जाते हैं तो हमारे कारण उससे क्या होता है, हमें वुंड हमारी बॉडी पे वुंड कर देते हैं, फ्रैक्चर कर देते हैं, हमारे ईयर ड्रम को रप्चर कर देते हैं, लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करते हैं। फॉलिंग द बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो फॉल हो जाती हैं, जिनसे हमें मल्टीपल इंजरीज होती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। फायर के कारण हमें हमारी बिल्डिंग्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनका कारण होता है सी पे बर्न्स हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो इफेक्ट हैं वो रिड्यूस होते हैं कन्वेंशनल वारफेयर से। सो दीज आर द सम ऑफ दी मैन मेड डिजास्टर है। आपकी न्यूक्लियर वॉरफेयर है जिसमें बम है, आपका ब्लास्ट है, हीट है, रेडिएशन है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, केमिकल वॉरफेयर के अंदर नर्व गैसेस है, मस्टर्ड गैसेस है। कन्वेंशनल वॉरफेयर है। ठीक है, तो ये आपके निम्न टाइप ऑफ दी मैन मेड डिजास्टर हैं जो आपको बताए यहाँ पर। एंड नेक्स्ट मूव ऑन द साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू ए डिजास्टर। जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होती है डिजास्टर के कारण, वो किस तरह की होती है? पीपल ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप tend to react to a disaster in the different way, although loss of appetite, sleep disturbances are common at all ages। जो निम्न प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो सभी प्रकार की एजेस को इफेक्ट करता है, इसके अंदर हमारी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण पर्सन के अंदर एक प्रकार से डिजास्टर जो होता है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर कर सकता है। साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो निम्न प्रकार से हैं आपकी, जिनमें दी हुई है आपकी प्री स्कूल 1 to 5 ईयर में किस तरह का इफेक्ट होता है। प्री स्कूलर जो होता है 1 to 5 ईयर होता है, जिसके अंदर फियरफुलनेस होती है, नाइटमेयर होता है, क्लिंगिंग टू द पेरेंट्स होता है। फियरफुलनेस बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, नाइटमेयर्स आ जाता है।
क्लिंगिंग टू द पेरेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्री स्कूलर जो होते हैं 1 to 5 ईयर्स के अंदर ये अफेक्ट करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर 5 to 11 ईयर्स के अंदर क्या होता है, नाइट टेरर हो जाता है, नाइटमेयर्स हो जाता है, फियर ऑफ डार्क, डर लगने लगता है नाइट से। ठीक है, आप फियरफुलनेस का मतलब समझते हो कि डर लगने लगता है, नाइटमेयर का मतलब है नाइट में बुरे बुरे सपने आते हैं, पेरेंट्स का क्लिंगिंग होता है। तो इस प्रकार की ये प्री स्कूलर के अंदर होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर नाइट टेरर होता है, नाइट के अंदर बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों को फेंकना नींद में, नाइटमेयर के अंदर बुरे बुरे सपने आना, फियर ऑफ द डार्क, डार्क से बहुत डर लगना, एग्रेसिव बिहेवियर एट द होम एट स्कूल, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना, झगड़ालू टाइप का बिहेवियर हो जाना घर के अंदर या स्कूल के अंदर, स्टमक एक होना, पेट में दर्द होना, हेडेक होना, क्लिंगिंग और वीजिंग। ठीक है, वीजिंग होना, साउंड होना, क्लिंगिंग होना, पुअर कंसंट्रेशन इन स्कूल, स्कूल के अंदर पुअर कंसंट्रेशन होना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर इस प्रकार के आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। देन प्री एडोलसेंस के अंदर 11 to 14 ईयर्स की एज के अंदर रेबिलियन इन द होम, जो इन द होम के अंदर जो रेबिलियन है उस तरह की घटनाएं होती है, जैसे कि आपकी रिफ्यूजल टू डू कोर्स, मतलब जो होती है कि आप एक प्रकार से हर चीज के लिए मना करते हो कि नहीं हमें वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, जिद्दी हो जाते हो बहुत ज्यादा, रेबिलियन इन द होम, सच ए रिफ्यूजल टू डू, कोई भी काम के लिए सबके लिए आप मना करते हो। ठीक है, स्टोमक एक होता है, हेडेक होता है, किसी भी टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करने में आप घबराते हो, स्टमक एक होने लगता है, हेडेक का एक बहाना लगाने बैठ जाते हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्रेंडों के बीच में आप इंटरेस्ट लेना नहीं पसंद करते, स्कूल प्रॉब्लम हो जाती है जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जैसे प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो जाती है। अडोलसेंट के अंदर 14 to 18 ईयर्स के अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द डेटिंग डेटिंग के अंदर आपकी जो डेट करते हो, डेट के अंदर आपकी इंटरेस्ट कम हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, डेलिंक्वेंट बिहेवियर हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है आपका, हाइपोकॉन्ड्रिया होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर आपके मेनली आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी भी चीज से आपको फियर हो जाना, या इस पर मतलब किसी पे विश्वास नहीं करना, ब्लेम करना, ठीक है, गलत समझना किसी चीज को कि कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, अंध इस तरह के अंध मिसकंसेप्शन आपके अंदर डेवलप हो जाना। अडल्टहुड के अंदर जैसे कि डिस्ट्रेस हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, इंट्रूसिव मेमोरीज ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर होता है उसके कारण इंट्रूसिव मेमोरी हो जाती है आपकी, फ्लैशबैक आ जाना, आप जो फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर आपका फ्लैशबैक होता है, जो पुरानी फीलिंग्स होती है, पास्ट इवेंट जो होते हैं आपके, उनका फ्लैशबैक होता है। इंटेंस डिस्ट्रेस एट रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर होने पर आपको इंटेंस डिस्ट्रेस होता है, कोई भी आपकी इवेंट जो होती है, घटना होती है, आप उसको जब भी याद करते हो तो इंटेंस डिस्ट्रेस होने लगता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, फीलिंग्स की जो है उसके अंदर ब्लंटिंग फीलिंग्स होती है आपके अंदर, इंटरेस्ट नहीं रहता है, प्लेजरेबल एक्टिविटी जो होती है उनमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ट्रबलिंग ड्रीम्स होते हैं आपके, बार बार जो ड्रीम्स होते हैं वो आपको ट्रबल करते हैं, इंसोम्निया होता है, जो आपको बिल्कुल नहीं नींद नहीं आती है, पूर कंसंट्रेशन होता है, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो उस प्रकार की ये आपकी निम्न जो इफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये आपके डेवलप होते हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट द दीज कंडीशन हियर। आपका जो मैन मेड डिजास्टर है भी हम ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लास्ट हीट रेडिएशन होता है न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर एंड केमिकल वॉरफेयर के अंदर, नर्व गैसेस, मस्टर्ड गैसेस, कन्वेंशनल वॉरफेयर। So these are the some of the psychological reactions we have studied here, जो आपके जो इफेक्ट करती हैं, ये हैं आपके जो डिजास्टर के अंदर डेवलप होती हैं। So this is the one of the topic is covered today. If any doubt, you can discuss, and if you have any problem, you can clarify by the phone. And thank you for everyone for cooperating. And next, we'll move in the next class in another topic. And okay, thank you very much.